for your warm wishes, and I wish and pray for all of you same. Okay, so a wonderful evening to all of you, and this evening is going to be a life-changing evening for all of us, including me, because today we have a special guest for us to inspire, to motivate, and share her success journey. हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, बट क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास आंखें नहीं है पढ़ने के लिए? You don't have eyes to read. So today, a special person who is there with us, who has secured 36th rank, and she qualified written exam in general category. Okay, to be very surprised. अगर किसी को लग रहा हो कि she is qualified in some special disabilities category, तो ऐसा नहीं है. She qualified in general category. And today, after today, I am damn sure कि कोई complain नहीं करेगा कि मेरे पास ये नहीं है, because you have both the eyes to read. Both the eyes to read. Okay, so I welcome Sunita Mohata, who has qualified RPSC Assistant Professor exam yesterday and secured 36th rank with a very good marks and qualified written in general category. So welcome, Sunita. Thank you so much, sir, and lots of gratitude paying to you, sir, because sir, you guided me in the right direction, and the benefit of which I got in bright results, sir. So ये काफी लोगों का स्केप्टिसिज्म है कि बिना आंखों के कोई पढ़ कैसे सकता है, बिना दो आंख वाले तो पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे. So the God that given you the power to see the world even without eyes, I think आज लोगों के पास आंखें रहते हुए भी लोग उस चीज को नहीं देख रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं. So first of all, I would like to ask you to introduce yourself and tell about your success of NET exam and also your family background, and then we will move ahead, and at the end of the session we will take some questions also by the students here. Thank you so much, sir. I would like to introduce myself. Sir, you told my name, and I belong to the Bikaner city of Rajasthan, and I think all of you know this city by the Bikaneri Bhujia and Namkeen name of this city is fame of our city. And I had studied thoroughly in Jodhpur city, which is known as Blue City or Sun City in Rajasthan. And by birth, I am totally blind. I studied in schooling in a blind school, and after that, I started my fight in general normal category students field, and I graduated with English literature, Sanskrit literature, and vocal music subject, and did my B.Ed in 2009 with Sanskrit and English literature, and did PG with English literature. After that, I was selected as second grade teacher of English subject, and then I started my journey of first grade English school lecturer within 1 year, and from then till I am teaching to the 11th and 12th class school normal girls who can see, and I every year teach almost 300 or to the 250 or 300 girls of class 12th. And this time I am promoted as principal of government school in Rajasthan education department, and also qualified as assistant professor last evening. And I did my 2-time NET. Firstly, I got my NET and aspired to get my JRF, but I was unable to get that. So I think whatever happens with us happens with the grace of God. Maybe it is nice for me that I lacked that degree of JRF, and I did my best to achieve this my dream job of assistant professorship.
That's my short interview. And sir told me that I should tell my family background. So I belong to a community which focuses all his life on business and business services, and no one in my family is graduated about 12th class, and no one understand English in my family. Nowadays my nephews are in English medium schools, but they are too junior to me to tell me all the things. So I did all my struggle with my friends by telling them things which I can learn from the teachers while they were teaching in the class. And I just wanted ever to concentrate on the things which teachers or other things tell us as experience, as our learnings. And I always shared with the friends so they can love me, they can give me, they can make me achieve all the things. So I thank to all the persons who dedicated their time, who devoted their faith in me. That's my intro in short. थैंक यू सो मच सुनीता. एंड अगर आज कोई इंस्पायर नहीं हुआ ना इस क्लास में, आप जिंदगी में कभी इंस्पायर नहीं होंगे आफ्टर लिसनिंग टू सुनीता. Yeah. Okay, so I would like to give this introduction as an example कि introduction देते कैसे हैं. All of you have seen सुनीता ने कितना beautiful introduction दिया, और जितने मैंने सवाल डाले थे introduction में डालने के लिए, she has replied to each and every question. Okay, you learn. Okay, all of you need to learn how to give an introduction, and I am very sure that she has done a lot of hard work during the mock interview session. हमारा और सुनीता का almost 8 session हुआ था mock interview का. and she is blindly followed me. That's very word I'll say. She blindly followed my all instructions. Okay, and in her introduction, she said कि मैंने उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिनकी आंखें हैं. Okay, that really touched my heart, because जिसके पास आंखें नहीं है, अगर वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, so that is really speechless and marvelous. So thank you, Sunita, for your wonderful introduction. My next question to you is, how do you qualify NET just by listening without reading anything? Sir, very great challenge for me. As sir, in 2018, when I started my journey to be aspirant of NET, that time, sir, I was exactly not sure that I can do it. As in 2016, I fought the examination of set of RPSC, but I was failed. After achieving almost 62% marks in SET examination, I was unable to achieve my SET degree. That time I think that it's not for me. Before that, sir, one hurdle come in my life when I tried to appear in NET examination in 2013. Sorry, sir. When I was preparing my examination and my admission card was issued. Just I want to describe this event to tell the listeners and my virtual friends that how much problems have we fought, or how much problems have we faced to come here. So if you want, then you can do. My incidents will damn sure tell you this. I went to my center and asked the administrator that who will be my scribe. As you know that I can't see, then administrators provide us a scribe who can read the text for us and also mark the answers for me after listening from me. Then they told me that okay, you can have any scribe of class 12th, and he or she should not have English literature subject. I said okay. Then I chose a girl of class 12th as per their rules. I went in the school. The exam was almost at 9 started, and after bell rang, the invigilator came and said
that, oh, please expose this girl from here. We will provide you scribe. And I say, okay, ma'am. Then there was one lady who came to me and said that I am your scribe, and just we are going to start our paper. I said, okay. I was very happy that maybe she is elder than former ones, so she will read in the proper way. Then the first line when she started to speak, I just understand that she didn't know English. As she started to read in Hindi, I said, my medium is English, so please read in English. Then she said, don't know any word of English. I never studied English. Oh, Jin, I am just in the very, favorite mood to give my net examination. I prepared only with the Upkar guide, which was my passion. I thought that it is enough. That time I was exactly unknown about net and exactly new candidate of PG pass examination. And that time, one in the examination, someone says me that I can't read a single word of English. Then how can I give my examination? My dream was exactly, broken, that I am unable to give only examination. Result is far away, but that time I was failed in the first line of the examination. Just feel what goes on in one's life when such type of things happens. So I said to the invigilator, please permit me to go from here. They said, you will, tell the things about the paper to the others, so we will not allow you to go from here. I said, I didn't see a word of paper, then how can I out the paper? But they didn't give me. They make me astonished by staying there for whole the day. And I just cried and waited for the time being over. And I waited for the 5 to 6 years because my family members said that you are in already service, then don't be troublesome. You have a lot of problems as a scribe, so you should be satisfied in school education. You are already school lecturer. But I just thought that being stayed in life is not a good option. The stayed water also, rot. So I should go further and do something new. And in 2018, I just was confirmed to appear in net examination. I listened the audios. Just think, by listening English language, how can one prepare? How can you guess what is by by or bye or buy? Yes, then that's very challenging. If anyone is saying that it would, then how can you imagine that it would or it had? Because reading is another thing, but listening is very different. I always focus on my things. So I achieved this. It is too hard, but I think that if I have one shortcoming of physical disability, then I should prove myself that without having sight, we should have insight in us. So wow. thank you, sir. Great. I request Sunita to be a little bit bilingual in Hindi also, because all our audience is very much comfortable in Hindi, and I feel you can be more emotive. You will be able to use your emotive language in Hindi also. Yes, sir. Your journey was really, it was full of troublesome. और एक कहावत है कि हर सोने को चमकने के लिए पहले मिट्टी से होके गुजरना पड़ता है. बिल्कुल सर. Okay, so I can see that. मैं पहले सर कुछ जैसे मेरे को पता है कि कुछ लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ लोग वाव बोल रहे हैं, तो उनको मैं थैंक यू देना चाहूंगी. मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए जो साइट होती है उससे सर हम 80% आप लोग देख के सीखते हैं. आप किसी भी चीज को देखते हैं तो सारी सेंसेस में, 5 सेंसेस में सबसे ज्यादा हम विजन के थ्रू. आप 80% पीछे हूँ. अगर स्ट्रगल नहीं करूँ,
अगर मैं उस चीज को मेंशन करके बैठ जाऊं कि मैं कैसे सीखूंगी, तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होती और आप मुझसे बात नहीं करते। क्योंकि इंसान की पहचान नहीं होती, उसके टैलेंट की, उसके डेजिग्नेशन की, उसकी पोस्ट की पहचान होती है। और अगर हम इसी को इनबिल्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल व्यक्ति हो। वेरी वेरी नोबल थॉट। बहुत अच्छा कहा सुनीता ने कि जो 70% अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग बोलते हैं आंखों के थ्रू होती है, विजुअली होती है, बट व्हेन यू डू नॉट हैव द विजुअल 80%। तो जिसको विजुअल्स नहीं है, तो क्या वो 20 को 80 में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दैट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से आता है। So I really congratulate Sunita for your wonderful struggle throughout your life, and the way you have climbed the ladder since by disqualifying the SET exam, then qualifying NET exam, then becoming a teacher, then a principal, and finally becoming the assistant professor. So ये जो जर्नी है, इस जर्नी में सबसे स्ट्रगलफुल टाइम कौन सा रहा था? देखिए सर, स्ट्रगलफुल टाइम बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे। यू नो सर कि जब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, मैंने जब बीएड की थी सर, तो राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज था, वहां से मैंने बीएड की थी सर। तो वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छी डेजिग्नेशन के, बहुत पुराने, मतलब एजेड, काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर रहते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे इंग्लिश ली थी, देखिए सर लोग कैसे थोड़ा सा अननेचुरल हो जाते हैं कुछ चीजों में। तो मैंने जब इंग्लिश लिटरेचर लिया और संस्कृत लिटरेचर लिया था सब्जेक्ट, तो तब जब मैं संस्कृत की क्लास में गई, तो उन्होंने तो बहुत सारे 5-7 बच्चों को पहले देखा हुआ था कि ब्लाइंड बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं। लेकिन इंग्लिश में सर, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, राजस्थान में मेरा फर्स्ट था एज ए वुमेन इंग्लिश स्कूल लेक्चरर ब्लाइंड फील्ड में, मेरे से पहले कोई नहीं बना था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में तो सर ऑल ओवर राजस्थान मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग होगी एज ए विजुअल इम्पेयर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश लिटरेचर के। तो सर उस समय जो मेरे प्रोफेसर थे, मैं क्लास में थी, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली सर एडमिशन होने के बाद मना कर दिया कि तुम इस क्लास में क्यों बैठी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा सर मेरा सिलेक्शन हुआ और ये मेरे को अपॉइंट हुआ है कॉलेज। तो उन्होंने बोला कि जब आप इंग्लिश को ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को लिख के नहीं बता सकते, तो आप लेसन नहीं दे सकते, तो मैं आपको क्लास में आना अलाउ नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि सर पर मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, क्या सब्जेक्ट चेंज कर लो। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। आप इमेजिन करिए सर, क्लास में पूरी क्लास बैठी है और उसके सामने अगर आपको टीचर ये बोल रहा है, प्रोफेसर बोल रहे हैं, तो हर्ट तो बहुत होती है। उस समय मैं भी एक स्टूडेंट थी और हम एक्सप्रेशन नहीं देख पाते, तो शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं सर। फिर मैंने यही सोचा कि मेरे को एक काम करना है, सर को किसी भी बात का उत्तर नहीं देना है, मेरे को जो सर क्लास में कहेंगे रोज क्लास में जाना है और उस चीज को करके दिखाना है। अगले ही दिन से सर ने जो काम देना शुरू किया, मैंने उसको सिंसियरली क्लास में प्रेजेंट करना शुरू किया। और लकीली कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मेरे क्लासमेट्स उस समय ऐसे वाले थे जो तैयारी करके नहीं आ रहे थे, और मेरी प्रेजेंटेशन हमेशा क्लास में रहती थी, क्योंकि मुझे सर को ये बताना था कि सर पढ़ाई करना साइट का काम नहीं होता केवल, ये माइंड बेस्ड थिंग होती है, ये पैशन बेस्ड थिंग होती है। हम पैशन के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू, अपने हार्ट के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो मैं कंसंट्रेशन के साथ जब ये सब चीजें क्लास में बोलती थी, पहले दिन सर ने कुछ आंसर नहीं दिया क्योंकि मेरा आंसर सही था। अगर गलत होता तो सर आप समझ सकते हो। फिर अगले दिन भी नहीं बोला, फिर सर ने बोला गुड। फिर लास्ट में 1 महीने के अंदर सर ये बोलते थे, अगर क्लास में किसी को भी कुछ पूछना है तो पहले सुनीता से पूछेंगे और सुनीता मुझसे पूछ के आपको बता देगी। वाह वाह, ग्रेट, वंडरफुल। सर ये चीजें हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसीलिए बताना बहुत जरूरी होता है कि कभी भी हमें छोटी छोटी दिक्कतों से हार नहीं माननी चाहिए। जो भी मिलता है वो हमें फेलियर के रूप में भी एक सक्सेस के स्टेप के रूप में मिलता है। और अगर हम इन्हीं चीजों को दिल से लगा लेंगे कि मेरा एक चीज रह गया, मेरे को दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ, बस हमें हर बार ये सोचना है कि इस बार भगवान ने लाके हमें करीब इसलिए छोड़ा है कि हम नेक्स्ट में इससे भी बेस्ट तरीके से चूज हो, एक एग्जाम्पल बन सके। थैंक यू। वंडरफुल थॉट, वेरी वेरी नोबल थॉट, वेरी नोबल थॉट। और सर एक चीज, ये हमारे लाइफ में सर ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सहन करने पड़ते हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं सर। पेशेंस और पैशन 2 चीजें हमें रखनी पड़ती है सर। Wow. I am very sure, Sunita, you are not going to be
the inspiration of this country, but you are going to be an international inspiration for the people. नो सर, इट्स ट्रू सर, आपने बहुत बोला अपना अपना उससे। बाकी सर अभी मेरे पास इतना कुछ नहीं, मैं एक दिन इस लायक जरूर बनूंगी सर। Wow, great, great. What a promise. Really, दिल जीत लिया. Wonderful, wonderful. थैंक यू सभी। Okay, so I'll come directly to the exam preparation. जब आपने RPSC का एग्जाम क्लियर करने के लिए सोचा, वो क्या मोमेंट था और क्या दिमाग में चल रहा था? देखिए सर, 2018 में मैंने नेट किया, उसके बाद में 19 में भी मैंने नेट किया था JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो मेरा रह गया था कुछ ही परसेंटेज से। फिर मैंने ये सोचा कि चले अपन सर्विस में है तो JRF तो उतना मायने नहीं रखता, कॉलेज लेक्चरर का जब भी आएगा वो देना है। क्योंकि सर जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वैसे एक बात और बताती हूँ सर, मैं पहले छोटी जब 5वीं 6वीं में थी, मैं कंटिन्यू इंग्लिश में फेल होती थी सर। ओह, मेरे को ये समझ में नहीं आया था उस वक्त की इंग्लिश होती क्या है। मतलब मैं इंग्लिश की एग्जाम में क्वेश्चन द ई स ई च ऐसे लिखती थी, उसके लिए मुझे मार भी पड़ती थी कि इंग्लिश नहीं आती है इसको। फिर मैंने ये सोचा कि अब पढ़ना है और अब इस चीज को पढ़ना है। फिर मैं जब कक्षा 8th में थी, उस समय मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मेरे एक टीचर ने मुझे उस समय बोला था, मुझे हिंदी में एक निबंध लिखना था नेशनल कंपटीशन के लिए। मेरे जीवन की अभिलाषा जूनियर वर्ग में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने जाके अपने सर से पूछा कि सर मैं मेरे जीवन की अभिलाषा क्या लिखूं। उस समय पता ही नहीं था अभिलाषा क्या होती, उतना टारगेट हो। तो सर ने बोला लिख दो बेटा कि मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। ओह, तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने लिख दिया और मेरा नेशनल लेवल पे 3rd आया था उस समय। वाओ, मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अब तो मुझे इंग्लिश के अंदर ही जो सर ने बोला है वो बन के दिखाना है। आज वो सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा याद करती हूँ कि जो एक टीचर के शब्दों में सरस्वती ने माता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, उस रूप में वो सर हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि सर एक स्टूडेंट कभी भी टीचर बन जाए चाहे प्रोफेसर बन जाए, वो अपने टीचर की रिफ्लेक्शन ही रहता है। तो हम उनकी रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं। what a noble thought. Wonderful. Thank you to all of you for continually encouraging me and giving your blessings, wishes, love. Please say Great, her great. say more, please. Thank you, Sunita. Your every word is recorded in the mind of the listeners. Yes, sir. You are so mesmerizing. Your every word is so mesmerizing. No, sir. Thank you so much. Okay, now coming to जब एग्जाम दिया, जब रिटन एग्जाम हुआ, तो किस टाइप का प्रिपरेशन था, कैसे प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए? यस सर, मैं बताती हूँ कि मैंने सर एक चीज नोटिस की थी। पहले मैंने ये सोचा कि मेरे पास रिटन में कोई भी किताब नहीं होती। कक्षा 12 के बाद से आज तक मैंने पढ़ाई सुन के की है सर। तो मैंने यही सोचा कि जब अपने पास में कुछ है नहीं तो अपन ऑनलाइन क्लास को किसी की ज्वाइन करते हैं। तो मैंने 1-2 जगह ज्वाइन किया था, मतलब किया एक जगह ज्वाइन, और मैंने 1-2 जनों का ऐसे सिलेबस ऊपर से देखा था। फिर मेरे को ये नोटिस हुआ सर कि रुपए हमसे 6 महीने के लिए 6 या 8 या 9 हजार लिए जाते हैं, लेकिन कोर्स हमें लिमिटेड ही दिया जाता है। तो क्यों ना हम खुद अपनी मेहनत से, वो लोग भी हमें गूगल से जब मैटर दे ही रहे हैं, तो हम खुद अपनी मेहनत से उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे उस राइटर के अलग से नोट्स बनाए जाए और उनको पढ़ करके अपना खुद की मेहनत से जब हम करेंगे तो हमें हर कुछ याद रहेगी। तो सर मैंने अपने लैपटॉप में हर राइटर के हर इरा वाइज अपने हिसाब से अच्छे से नोट्स बनाए, उनको स्टडी किया, और उसके बाद में लैपटॉप में मैं आराम से सर अपना पूरा काम करती हूँ। आई एम एग्जैक्टली टेक्नो फ्रेंडली। आई कैन ऑपरेट ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर विदाउट conduct only using photos. I can use all the things in all activities in technical areas. वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ फिर पे आज के बाद जस्ट मिनट, आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है। देखिए सर, Wonderful. अच्छे अच्छे लोगों ने हमारे लिए जब चीजें बना दी और हम उसका यूज नहीं करेंगे, मम्मी ने अगर खाना बना के दिया है ग्रीन सब्जी का और हम उसको अगर डाल रहे हैं इधर उधर कि मेरे को नहीं खाना है, तो वो तो हमारी ना समझी होगी ना कि जो चीज बॉडी को फायदा दे रही है हम उसी को नहीं खा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है ना, वो वाली बात है। Yes, 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 तो yes. सर फिर मैंने उन नोट्स के थ्रू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे हर इरा का अच्छे से स्टडी किया, और जीके के क्वेश्चंस में भी मैंने सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी किया। और ये चीज नोटिस की सर
कि पिछले साल के पेपर के इवैल्यूएशन के साथ जब हम नोट्स को पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम केवल थ्योरी को पढ़ते जा रहे हैं, वो अलग चीज होती है, उसमें क्या होता है हम रट्टा मार पढ़ाई करते हैं। और एक होता है जब हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं क्वेश्चंस के साथ आंसर्स के साथ, तो वो होता है हमारा इवैल्यूएशन वाला पढ़ाई। तो वो हमें उस तरह की स्टडी करनी चाहिए और वही हमारा बेस एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वंडरफुल, सुपर। तो आपने जो कोचिंग ज्वाइन किया 8 से 9 हजार रुपए दिए, वो आपने छोड़ दिया? नो सर, मैंने लिया तो था पर उसमें इनकम्प्लीट चीजें थी सर, प्रॉपर आई नहीं थी। वो था तो सही मेरे पास पर 6 महीने के लिए। बट वो सफिशिएंट नहीं था? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं था। और उसके बाद में जब थी तब मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कहीं आसपास में राजस्थान में कोई मिले या जिसको, और वैसे सर थोड़ा ये रहता है कि घर में हमारे सब बिजनेस वाले लोग हैं तो टाइम नहीं रहता, तो आना जाना पॉसिबल नहीं रहता। तो मैंने यही सोचा कि कोई मुझे वर्चुअल टीचर मिले जो मेरी हेल्प कर सके। तो ऑलमोस्ट 2 महीने के डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेरी एक दिन मेरी एक फ्रेंड को एग्जाम मेट से बात हुई और उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, एंड दैट वाज माय ब्लेस्ड डे दैट I contacted you and you gave me assurance that you will make me prepare my whole preparation. And after that, I was very much confident about my interview session, sir. यहाँ पे मैं सबको एक बार बता देना चाहता हूँ कि when I had the first interaction, first mock interview with Sunita, उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था Sunita, you will definitely qualify the exam. So I was that much inspired by her personality. So that was the thing. So when you qualified the written exam, what was your approach towards the interview? Yes, sir. Written examination. Yes. written के बाद की जो जर्नी रही है। ये सर, उसमें मैंने यही सोचा था कि इंटरव्यू के लिए मुझे पूरे कोर्स को वैसे मगअप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत जो लोग पहले सक्सेसफुल हुए थे या जिन लोगों ने अच्छा खासा सर टीचिंग एक्सपीरियंस रखा उनसे पूछा, और फिर जब आपसे बात हुई तो पता चला कि वो लोग एग्जैक्टली हमें वो कोर्स पूरा नहीं पूछते जो हम रिटर्न में पढ़ते हैं। हमें सारी इराज का बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री और उसके जो चीफ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो अच्छे से समझे हुए होने चाहिए, प्रैक्टिकल बेस पे, नॉट थ्योरेटिकल बेस पे। और उसके अलावा कुछ जो रिमार्केबल राइटर्स होते हैं हर एज के, एक दो जिनके नाम से वो एज जानी जाती है, वो, और प्लस हमारे फेवरेट वंस कौन है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद में जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं वो प्रिपेयर करना है, ना कि हमें पूरे कोर्स से बार बार गोइंग थ्रू होना है, जिससे कि हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप रे, अभी तो एलिजाबेथन एज इतनी लंबी है, जब जैकोबियन में जाएंगे तब तक तो रिवाइवल साफ हो जाएगा। क्योंकि रिटर्न में तो हमें ये होता है कि वो सामने क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं 4, तो उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। इंटरव्यू में हमें इंस्टेंट आंसर वाला इंसान बनना होता है, इंस्टेंट रिप्लाई देना होता है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट बट एग्जैक्टली मैटर वाली चीजें पढ़नी होती है। तो उसी बेस पे हमें तैयारी करनी है कि जो हमें हमारा डेमो चीज बनानी है, डेमो जिसको बनाना उन राइटर्स को, जैसा आपने सर मुझे बताया था, और उस चीज को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी रही थी कि मैं डेमो में थ्योरी लूं कि लिटरेचर लूं कि ग्रामर लूं, और आपने मुझे ये बार यही बोला कि आप जिसमें कंफर्टेबल आप वही लें, तो मैंने वही किया और उसके बाद में मैंने तैयारी की सर। वेरी नाइसली। जब हमारा मॉक सेशन चल रहा था तो मैंने सुनीता को बहुत ग्रिलिंग किया। हर बार मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता था, सुनीता बोलती थी सर मैं कितनी भी तैयारी करके आती हूँ, आप हर बार कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हो कि मुझे खुद के ऊपर डाउट हो जाता है। यस, वो सर ऐसा होता था कि मैं सोचती थी इस बार मेरा लैकिंग थ्योरी था, लैगिंग, तो इस बार मैं थ्योरी तैयार करके चली जाती क्योंकि सप्ताह भर का ही डिस्टेंस रहता था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं थ्योरी पढ़ के आती थी तो वो लिटरेचर वाला 15 दिन वाले क्वेश्चन आते थे। अब जब लिटरेचर पढ़ के आती थी तो फिर थ्योरी में से क्वेश्चन आते थे और वरना क्रिटिसिज्म में से आ जाते थे। तो फिर मैं कहती थी कि सर, और जब ये सब तैयार होता था तो करंट में से आ गए जो मेरे को बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, 2-3 क्वेश्चंस में। तो मैंने ये बोला क्योंकि सर टीचर इज ओनली टीचर, ही इज फॉर व्यूअर। यस, वेरी राइटली सर। मेरा हर बार यही अप्रोच रहता था कि मुझे पता रहता है कि इस बार आप क्या तैयार करके आ रहे हो, उधर फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस कहाँ करना है ताकि आप अगले वाले इंटरव्यू के लिए तैयार करो। अदरवाइज आपको अंदर से एक ईगो आ जाएगी कि इस बार तो मैंने सब पढ़ लिया। बाकी सर ये बात है,
एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से जब हम प्रिपरेशन तो रिटर्न का बेस बनाने के लिए जब तक एग्जाम के फॉर्म निकल रहे होते तब से हमें रेगुलर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। देखिए सर, हमें क्वालिटी की पढ़ाई करनी है, हमें क्वांटिटी आवर्स वाली पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ लोग ये ध्यान रखते हैं कि मुझे 8 से 10 घंटा पढ़ना है, वो बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं होता। जब आपका दिल करे आप केवल उसी समय पढ़े, और जितनी देर दिल करे उतने ही समय पढ़े। लेकिन जब पढ़े तो सारा रिकवर कर जाए। जैसा होता है कि जब हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं तो हम बहुत अच्छे से खाना खा पाते हैं, और भूख नहीं होती तो उसी एक रोटी को लेके हम 1 घंटा बैठे रहते हैं। तो जब आपको पढ़ने की भूख लगे आप उसी समय पढ़ें। मैंने सेम वही ट्रिक अपनाई थी रिटर्न के एग्जामिनेशन के टाइम पर। क्वेश्चंस को कंटिन्यूएशन में मैंने पढ़ना जारी रखा, इवेलुएट करना, और साथ में उसी से बेस्ड थ्योरी, और अपने हिसाब से जो दूसरे क्वेश्चंस आते थे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ईरा को कंप्लीट किया, उसके राइटर्स को कंप्लीट किया रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, तो मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते थे वो पढ़े। वैसे वाले क्वेश्चन नहीं कि कौन से राइटर का कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, वो कहाँ का था, ये तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। जैसे PYQS में आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता है, और उसके बाद में हम थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और मैं एक चीज और अप्लाई करना पसंद करती हूँ कि आप एक आधा ऐसा भी इंसान चूज कर लें जिसको आप जबरदस्ती बोले भाई तू पढ़ाई कर, उसके कारण आप उसको समझाते रहे, तो आपकी भी स्टडी होती रहती है और वो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहती है। मैं मेरे स्टूडेंट्स पे ये चीज अप्लाई करती हूँ कि यार नेट करो, तुम नेट करो। जो मेरे स्टूडेंट्स PG के, तो मैं उनको वो चीजें समझाती रहती हूँ, जिससे मेरी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीज लॉन्ग बेस पे हमारी मेमोरी में रहती है, और इसी बेस पे मैंने अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर किया सर। क्योंकि नेट होने के बाद पढ़ाते रहो, बस आप दूसरों को बोल दो कि ये थ्योरी तैयार की है क्या, कि नहीं की है, तो बोलो कि मैं समझाती हूँ तेरे को। फिर ऐसा करके जब आप करोगे तो आप उसको समझाने के चक्कर में खुद का बेटर करते जाओगे, तो वो चीज होती है। तो आप ऐसा तो नहीं घर में सबको पकड़ के आप थियरी पढ़ाती थी? नहीं पढ़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश बोलो ही मत, मारवाड़ी में बोलते हैं हम तो सर, घर में 24 घंटा मारवाड़ी चलती है। ओके ग्रेट। मेरे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी 2-3 को, और उसके बाद में मैंने वैसे कर करके अपना तैयार कर लिया, क्योंकि सर मुझे तो हर चीज सुन सुन के पढ़ना रहता था, तो मैं डिस्कशन करती थी तो मेरे को और क्लियर होता जाता था। केवल रीड की तैयारी नहीं होती सर। Yes, very rightly said. Very rightly said. Can you share those moments of the real interview? जब आपने इंटरव्यू रूम में इंटर किया तो क्या चल रहा था वहाँ पे? इट्स वेरी सर फनी दैट सर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने जब आपका इंटरव्यू दिया तो आपके इंटरव्यू से पहले तो शायद मुझे फिर भी थोड़ा बहुत होता था कि आज सर पता नहीं क्या पूछेंगे, है ना। लास्ट 2 में तो नहीं हुआ था, शुरू वाले में कभी कभी होता था ऐसा, और पहले पहले में तो बहुत ही हुआ था। लेकिन आपके इंटरव्यूज को दे दे के सर मैं इतना अच्छे से कंफर्म हो चुकी थी कि जब मैं इंटरव्यू रूम में गई तो मैं सिर्फ ऐसे गई जैसे मतलब अपनी क्लास में हम टीचर्स के पास जाते हैं आराम से स्माइल करते हुए। मैंने आपने जैसा बताया था कि पहले मैम को और फिर सर को वैसे ग्रीट किया। उसके बाद में मैम ने मुझसे, जो बोर्ड मेंबर थी, उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन किए, तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि हिंदी वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे हिंदी में देना, क्योंकि यू सेड मी दैट दे विल चेक यू बाय बीइंग बाइलिंगुअल। फिर मैंने के आंसर्स का हिंदी में जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझे जब एक्सपर्ट को फॉरवर्ड किया जीके के क्वेश्चंस के बाद, तो उन्होंने इंग्लिश में पूछना शुरू किया, तो मैंने आंसर देना इंग्लिश में शुरू किया। And then they were surprised that I am teaching English literature of class 12 because luckily there were no person of my board who was teaching literature to the class 12. They were all compulsory teachers, and I was teaching compulsory and literature. They asked me in-depth questions of class 12th writers. I tried my best to answer them, and when my interview was over, I felt that it's happened. I didn't, and very in the very easy mood, I said, "Okay, thank you so much, ma'am and sir, to both of you for providing me such homely atmosphere." And they said me by smiling that thank you too so much. Wow, great, wonderful. Yes, Clap for you. बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के. Yes, sir. The next question that I would like to ask you कि यहाँ तक इस जर्नी तक पहुँचने में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा. So I would like to acknowledge from you, in your words, all those names who have played a contribution in making of Sunita Mohata.
यस सर, अनडाउटेडली सर। मेरे को जब हर चीज में जब देखने की जरूरत पड़ती है, जब पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मैं बहुत लोग नहीं है मेरे, मैं ब्लेस्ड हूँ सर। मेरे पास लोग चाहे संख्या में कम है, लेकिन वो इतने हैं कि मतलब वो मेरा सारा काम ज्यादा लोगों वाला निकाल देते हैं। सबसे पहले तो सर आप मान सकते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद, क्योंकि मैं उनका बहुत फेथ रखती हूँ सर एक्चुअल में। क्योंकि मेरे जीवन में जो साइट की कमी थी, वो उन्होंने मुझे इनसाइट दे के नॉलेज का रास्ता दिखा करके, नॉलेज उन्होंने भी मुझे दिया नहीं है, देंगी वो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, पर उसका रास्ता दिखा रखा है जिसमें मैं आगे बढ़ने की कोशिश में अभी लगी हुई हूँ। तो उसका उनका तो है ही है। उसके बाद में सर पेरेंट्स, क्योंकि सर आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे को भी स्टैंड करने में पेरेंट्स को कितना देना पड़ता है साथ। तो जो स्पेशल केस का बच्चा था, उसके लिए पेरेंट्स को ऐसे, जैसे एक कहावत है कि एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है, जब भी कुछ हो जाए तब, हर समय तो नहीं लेकिन जब भी जरूरत हो तब, तो वो होता है। और उसके बाद में सर मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जिन्होंने मुझ में फेथ दिखाई, जिन्होंने मुझे क्लास 8 में बोला था कि आपका ड्रीम जॉब ये होगा और आप एक दिन ये बनेंगे। और सबसे बड़ी वेल्थ मेरी मेरे स्टूडेंट्स है सर। मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ, और हर बैच की बच्चे, हर साल मेरे स्कूल से 1000 बच्चे निकलते हैं सर। और मेरे पूरे स्कूल में ब्लाइंड में एक हूँ, मेरे स्टाफ में और मेरे पूरे स्टूडेंट जो होते हैं उनमें। पर बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं सर। मेरे स्कूल में मेरे अलावा और भी लेक्चरर्स हैं इंग्लिश के, लेकिन जो प्यार अफेक्शन मुझे बच्चों से मिलता है, वो मेरे लिए अनबिलीवेबल है, मैं सोच भी नहीं सकती। और वो हमेशा ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं। और एक दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जैसे सर अभी मेरे पास एक बैठी है स्टूडेंट मेरी, दिव्या जोशी नाम है सर उसका। वो मेरे मेरे साथ सर जब से वो मेरी स्टूडेंट है, तब से आज उसको 6 साल हो गए हैं। वो उसने मेरे साथ हमेशा पढ़ाई की, और सर लास्ट ईयर उसने भी गोल्ड मेडल हमारी यूनिवर्सिटी, बीकानेर की यूनिवर्सिटी में जीता था। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ बैकबोन की तरह मेरे साथ रहते हैं। और सर मैं हमेशा मेहनत इन सबको खुश करने के लिए करती हूँ कि मेरे से ज्यादा डिजर्व ये करते हैं कि मैं इनको फीडबैक वापस दूं, वरना मेरी अगली बार मेरे लिए कौन करेगा। अगर कुछ लेना है ना सर, तो पहले देना पड़ता है, फिर कुछ मिलता है सर। Wow, great, super. And a big kudos to Divya also for wonderful support and achievement that she is getting. एक बात यहाँ पे और भी बाकी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी सुनीता का मॉक इंटरव्यू होता था, she used to call her student for the support. And she was that sir. She is Divya. She is Yes. Divya. Wow, great, super. Thank you, Divya, for your wonderful support and supporting a teacher like a student. Yes. Wonderful. Sir, there are more students too, sir, who help me in school, at home, whenever I need. But sir, you know, there always is one for everyone who do some special, and that is she. Wow, wonderful. Sunita, we are reaching towards the final session. And here we have almost 75 students who are preparing for assistant professor exam. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि इनके लिए आपका क्या मैसेज होगा फॉर देयर रिटन एग्जाम एंड देयर इंटरव्यू? देखिए सर, मेरा एक ही मैसेज है सभी से कि सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो है, आज से अपने को यही सोचना है कि अगला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मेरे नाम ही होगा, मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। आधे लोग तो सर इसी चक्कर में नहीं निकाल पाते कि मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मेरे को तो ये ग्रामर नहीं समझ में आती, मेरे को जीके समझ में नहीं आता। मैं हमेशा क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही बात बोलती हूँ कि आता तो बहुत कुछ नहीं है, जैसे हमें दवाई नहीं भाती, लेकिन बीमार सॉरी जब हम होते हैं तो हमें दवाई लेनी पड़ती है। वैसे ही अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें जो कुछ भी सिलेबस में दिया हुआ है वो हमें सहर्ष स्वीकार करके सीखना ही पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब हम ये सोचेंगे कि यस आई कैन डू, है ना। और आज के बाद में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, वैकेंसी चाहे कितनी निकले। आप लोग देख के डर जाते कि अरे 12 निकली है, अरे 15 ही निकली है, हमें तो क्या चाहिए और वो हम इस बार लेंगे। और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को समझ करके पढ़े, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के टच में कंटिन्यूली रहे, आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा, चाहे वो जीके हो, चाहे ग्रामर हो, और चाहे थ्योरी हो। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्योरीज को पढ़ना, चाहे लिटरेचर के लेसन हो राइटर के बारे में, चाहे चैप्टर्स हो थ्योरीज के बारे में,
सब चीजों को जब तक हम प्रैक्टिकल बेस पे नहीं समझेंगे, रीडिंग इज रियली यूजलेस. सो आप एग्जैक्टली उस पैटर्न को फॉलो करें. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो मैंने बताया, आपको सच में बेनिफिट होगा. और अगर मैंने जो आपको एक ट्रिक और बोली थी कि आप अगर एक दूसरे के साथ में, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके किसी और व्यक्ति के साथ में आप तैयारी कर सके मिलके, डिस्कशन करके. रोज तो देखिए साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप दिन सप्ताह में एक दिन चुने या 4 दिन में एक दिन चुने ऐसा, जिसमें आप डिस्कशन करके चीजों को समझ सकें. आपको रियली बेनिफिट होगा, क्योंकि केवल और केवल थ्योरी को पढ़ने से कभी भी कुछ क्लियर नहीं होगा. और सबसे बड़ा क्लियरेंस तभी आएगा, किसी भी चीज में सक्सेस तब मिलेगी जब आप इनबिल्ट कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने में. और उसके लिए मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलती हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कि आप सभी ब्राइट फ्यूचर के साथ में आगे बढ़ें. और आपके नेक्स्ट सक्सेस इंटरव्यू में मैं सर के साथ हूँ. मेरा अगला ड्रीम यही है. Thank you so Wow, much, wonderful, ma'am. wonderful, Thank you. Sunita. Thank you. So nice of you. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, Sunita ma'am. You are Thank you. really a great Uh, inspiration to all of us. Sunita, last question of this session. Yes, I sir. want to know the moment. I want to know the moment when you receive your result and your happiness. Please share your happiness with us. So that was 9:45 p.m. of last night when I was waiting. And sir, sir, just see extremity of my patience that I also listen my result. I can't see the selection written with my name or with my roll number in paper on site. I only listen and enjoy my things. But sir, I feel enjoyment of my people who see and make me happy too much by expressing their happiness. And that was the moment all my staff members, my principal, my students, and my students also were crying almost that, ma'am, who will teach us now? I said that I am not just this way. I will go when government will give me joining order. I'm here. Then they were satisfied. So, sir, today's day was very nice because, sir, I never dreamt that it will happen in my life, but it happened because of God's grace and my hard work and wishes of all of my students and, sir, your guidance. थैंक यू सो मच सुनीता. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सबकी आंखों में आंसू है. No, sir, Everyone is for your eyes affection. is wet. Sir, Yes, sir. पूछना Yes, sir. Really. Really, sir. Ma'am, coming out here and inspiring us with your true words, and it's a true inspirational story for all of us. We are doing very hard, but your story making us doing more hard work. So thank you, Ruchita, for your kind words, very heartly words. And I wish you too and all of the students who are with me, who, think me that I can have session with them. Okay, last 2 minutes, Sunita, ma'am, if you have please time. coming up, Last 2 ma'am, minutes. sir, please invite her time to time so that she can inspire us every time. Yes, Surely, sir. surely. Really. She is You will come, she is ma'am, going to please. be in my alumni group. She is going to be in my alumni group, and definitely we will be connected throughout. And she will be definitely helping us in our all ventures. Yes, Sunita. Thank you, sir. I'm just asking, sir, of which PSC board students are preparing for, sir? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Oh, UPPSC. Yes, sir. Yes, yes. Okay, all the very best. So last Yes. 2 minutes, Sunita. This time the question will come from the audience. So now this session is open for the audience to ask your question, but please one by one. Raise your hand and then I'll invite you to ask your questions. Okay, good. Nice. Okay, Pragya. Pragya. Hello, ma'am. Yes, hello, Pragya. Good evening, sir. Good evening. Ma'am, I have no questions. I just want to share my experience. First of all, a bunch of congratulations to you and your family. And seriously, when I was listening you, actually my mother was also listening you.
and we both are so emotional. We just became so emotional while listening you, and like it was not a real story. Rather, it was like a we are listening a movie's story. I mean, it is. I would not say it is a miracle because you have put your hard work, your passion in this entire journey, and only few lines I want to share with you for you. Uh, Most welcome. Actually, I am being so overwhelmed. So, Oh, thank success is not final, failure is not fatal. It is the courage only to continue that counts, and what you have proved, ma'am. Oh, lots of love you too, because your words are so pious and you touched me with your, affection. Thank you so much to your mother too. Yes, ma'am. You just not even inspired us, but you just filled us with lots of courage, lots of inspiration, and what not, ma'am. I'm just out of word, ma'am. And And Ma'am, thank I you your so much, every sir, word, inviting, ma'am. emotions. I am too all out of it because I think I am nothing, but you are giving me really such love. So I am also out of word. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, dear. your every word touch our heart only. Thank Every you. Yes, word, ma'am. definitely, definitely. Thank you, Anna. Thank you so much, Pragya, and thank you so much, Sunita. One more question from Kanchan. रियली मैम, जब आपको देखा तो मतलब इतना इंस्पायर हो गए हैं हम लोग, और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं कि आप कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। आप बीच बीच में आया करें और हम लोग को इंस्पायर जरूर करें मैम। बिल्कुल, अपन हमेशा साथ में रहेंगे और आप भी सीखे और मैं भी आपसे सीखूंगी, क्योंकि देखिए सीखने का कोई भी स्थान, कोई भी समय नहीं होता, किसी से कुछ भी सीखा जा सकता। तो जब दो जन मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे जरूर और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देयर इज नो इश्यू। अगर आपको लगता है कि हम जुड़े रहें या मतलब कभी कभी अपना कुछ बात हो जाए या नहीं, तो भी हम कनेक्शन में रहें, तो आप सर से मेरा नंबर भी ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड विद यू। थैंक यू Yes, सो surely. मच। I'm going to add Sunita in our group as a Yes. part of honor. Thank you, sir. Sir, thank you so much, sir, for giving me such wonderful occasion, sir. I just am thinking that this is the most celebrating moment of my success, sir. Wow, great, wonderful. Sonal also want to share her feelings. Most welcome, Thank you Sonal. so much, sir, and thank you so much, ma'am. It's not just a question, like everyone is saying. We are so overwhelmed to, listen you seriously. The tears are just flowing out of the eyes and all. And the only thing that you said, no, that you are physically disabled, ma'am. It's not like that. You are divinely abled. I will not say you are differently abled, but I will say you are divinely abled. और Oh, जैसा कि आपने बोला कि मतलब माता सरस्वती ने आपको आपकी जो साइट की कमी है वो इनसाइट देकर पूरी कर दी। तो अभी कभी भी आप अपने आप को फिजिकली डिसेबल्ड नहीं बोलना, आप हमेशा अपने आप को डिवाइनली एबल्ड बोलना। दैट्स oh, ऑल। how good. Your word touched me, because when government said differently able, I always think that what's this name? Because differently able means we are doing the same. Then how are we different from others' Yes, ability? But you yes. give nice word, very brilliant girl. Good. Thank you so much, ma'am. God bless you forever and ever. Thank Take you. care. ये सर रियली, मैं मतलब आपने मुझे इतने पायस डियर वन से मिलने का मौका दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था। Thank you so much, Sonal, for your wonderful and heart-touching. Even you made me cry. Thank you so much, sir. Today, sir, Yes. this is the beginning. Sir, after washing anything, everything becomes clean. That I think today everyone's fear has been washed. Then everyone will be bright and confident and will do their hard work with passion. That I have to do that. So they will prove, sir. Thank you so much, Sunita. Yes. आज आई एम वेरी श्योर कि सबको कैथारसिस समझ में आया होगा कि कैथारसिस क्या होता है। Yes, teacher is teacher, so he is giving us theory point. Catharsis. Yes.
Now, Okay. Ruchita also want to share something. yes, Ruchita, welcome. Ma'am, I have a question actually. So, ma'am, I want to know few tips. In fact, literary tips जो हमें आगे help करे हमारे upcoming exam में. So please guide us something on this. श्योरली जो मुझे आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी. लिटरेरी टिप्स में सबसे पहले आप हर एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपने टिप्स पे रखें कि इस ईयर के अंदर पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ और फिर ये इवेंट हुआ. उसके बाद में आप उस एज के जो फेमस, जो चीफ प्रोमिनेंट जो राइटर्स है, उनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स हैं केवल उनको मेंशन करके याद करें. जो माइनर वर्क्स हैं उनके केवल नेम याद रखने हैं, हमें ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करके टाइम वेस्ट करना. और उसके बाद में हमें धीरे 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 जब हम ऐसा करने लगेंगे तो आप मेरा विश्वास करिए कि आपको खुद को पता चलने लग जाएगा कि अरे हाँ, मुझे इस राइटर का ये करना है. इट मीन्स मैंने ये पूरा कर लिया तो अगला जो राइटर वो थोड़ा माइनर लग रहा है तो मुझे ये तो करना ही नहीं है. और PYQS से ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये राइटर के क्वेश्चन जब इतने नहीं आए हैं तो मुझे उतना नहीं पढ़ना. और लिटरेरी टिप्स में एक चीज और होती है, you are blessed to write the things in your notebook, so you should write everything whenever you complete one age or one era. After that you will feel more confident because you know writing makes you too much confident. जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने ये चीजें मिस की, तो आप उस चीज से वापस गो थ्रू करते हैं. और जब गो थ्रू करते हैं तो आपका चीज का रिवीजन होता है. तो रिवीजन के लिए रोज 1 घंटा रखें आप, जिसमें आपको क्विक रिवीजन रखना है. उसके अलावा आप पूरे दिन में जो याद करते हैं उसको याद करें और आधा घंटा आप कोशिश ये करें कि ये प्लान करें कि मैंने आज जिन राइटर्स को पढ़ा उसमें मैंने कुछ मिस तो नहीं किया. क्योंकि देखिए लर्निंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को इवेल्युएट करना और जो हमने सीखना है उसको ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है. जैसे खाना पकाना तो है, पर उसके लिए मार्केट से पहले हमें सामान लाना होता है, फिर उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, उससे पहले हमें उसको छानना भी पड़ता है, डिब्बों में अच्छे से डालना भी पड़ता है. सब चीजें देखने के बाद में जब हम खाना बनाते हैं तो कितना डिलीशियस बनता है. सेम हार्डवर्क में भी वही होता है. लाइफ एक फिलोसफी है और उसमें अगर हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस के पास जाते हैं तो बहुत इजी वे में अपने पास आती है. हालांकि वैसे इजी कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें अपने आप इजी होती जाती हैं हार्ड के अंदर, है ना. ये बात है. Thank you so much. Thank you so थैंक यू. Thank you so much, Ruchita, for your wonderful question, and also Sunita. One last candidate, Shalini. Yes. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Shalini. Congratulations, ma'am. Thank you. Most welcome, dear. Ma'am, I'm just having a nostalgia. मेरी school teacher हुआ करती थी गीता यादव मैम. She was also differently able. And आज मुझे एक moment याद आ रहा है because मैंने school 5th तक English medium किया था and 6th से मैंने हिंदी medium किया था because of some reason. तो 6th में मुझे पहली बार संस्कृत इंट्रोड्यूस हुई और संस्कृत गीता मैम पढ़ाती थी. तो आई वाज टेरिबल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. तो एक दिन टेस्ट हुआ और टेस्ट में मेरी कॉपी ऐसे बीच से लाइन कटी हुई थी बिकॉज मैम तो चेक नहीं कर पाती थी. तो जो क्लास मॉनिटर हुआ करते थे वो मैम को बताते थे आंसर, वो चेक किया करते थे. तो आई डोंट नो व्हाई बट उसने ऐसे मेरी कॉपी से बीच से काटी थी एंड आई गॉट 0 मार्क्स. और जब भी हमारे यहाँ रूल था कि जो भी मतलब क्योंकि मैम को पता नहीं था कि इसको कितने मार्क्स मिले, तो आफ्टर टेस्ट वो कॉपी ऐसे निकालते थे एंड वो मार्क्स जो है क्लास में सुनाए जाते थे एंड माय मार्क्स वर 0. तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब ऐसा नाम लिया गया शालीन त्रिपाठी, 0 मार्क्स एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग. तो फिर मैम ने मुझे बुलाया, बोले क्या हुआ बेटा. मैंने कहा मैम मुझे नहीं आती संस्कृत, मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती. उन्होंने कहा लुक एट मी. मैंने कहा यस मैम. तो उन्होंने कहा कि बेटा आप बताओ क्यों डिफिकल्ट लगती है आपको. मैंने सीखी है, मुझे तो दिखता भी नहीं है और आप नहीं सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते. मैंने कहा मैम सीख सकती हूँ बट मुझे नहीं पता कैसे सीखना. उन्होंने कहा ठीक है आज से आप जो है मतलब लंच पीरियड में मेरे पास आओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी अलग से. एंड शी टॉट मी. और मैंने मतलब 9th में हमारे यहाँ ऑप्शन होता है कि आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, ड्राइंग, संस्कृत या क्योंकि मैं हिंदी मीडियम और मैं आर्ट साइड से रही तो उसमें ड्राइंग का ऑप्शन था. सबने मुझे बोला कि छोड़ दो, तुम्हें तो वैसे ही संस्कृत नहीं आती, क्यों बिना मतलब एक रिस्क ले रहे हो आप. तो मैंने कहा नहीं मैम ने मुझे सिखाया और उन्होंने उस टाइम तक मैं नहीं कह सकती मैं बहुत ब्रिलियंट थी बट मुझे था कि मुझे सीखना है. मैम ने एक मेरे पर फेथ शो किया है तो मैं उसको बिट्रे नहीं करूंगी. एंड आई कंटिन्यूड विद दैट सब्जेक्ट टिल माय 12th. एंड
I can I can proudly say कि 12th में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क थे संस्कृत में, एंड इट इज Oh, ऑल good. बिकॉज ऑफ हर. एंड आज आपको देख के मुझे उनकी बहुत याद आ रही है. स्कूल के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई, बट आई जस्ट फील लाइक हगिंग यू राइट नाउ, क्योंकि आप मुझे बस वही रिमाइंड करा रहे हो. एंड यू आर सो मच इंस्पिरेशनल. आफ्टर गीता मैम आई कैन रियली पुट योर नेम टू द सेम लिस्ट जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत इंस्पायर किया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो मच शालिनी, आपने जो इवेंट बताया मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और सच में जो व्यक्ति अपने लाइफ में जो इंसिडेंट होता है उससे अगर कुछ सीखता है तो वो सबसे बड़ा अचीवर होता है. तो यू आर वन ऑफ those achievers, and I wish bright future for you also in the field of English literature. Thank you so much ma'am. God bless you, all Thank of you. you. सुनीता, बहुत लोगों ने यहाँ पे हाथ खड़े किए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, बट आई विल टेक वन मोर बिकॉज अरुणा जी का काफी देर से मैं देख रहा हूँ. शी इज वेरी कॉन्शियस टू आस्क यू अ क्वेश्चन. अरुणा त्यागी जी, प्लीज. Yes sir, most welcome Aruna ji. Hello ma'am. First of all, congratulations. Ma'am, Yes. I'm much overwhelmed that I'm not able to speak something like that. But मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ मैम कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारे इंस्पिरेशन गांधी जी है, नेहरू जी है, ये है, वो है, लेकिन जब हम आप जैसे लोगों को देखते हैं ना मैम, तो यू आर द रियल इंस्पिरेशन फॉर अस, बिकॉज हम आपको अपने से रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने उन बड़े बड़े लोगों को देखा नहीं, जस्ट सुना है. बट यू आर द पीपल की जिनको हम लाइव देख रहे हैं, जिनको हम लाइव सुन रहे हैं. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैं समझती थी कि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ, और मैं बहुत इस चीज के लिए एक्सक्यूज भी ले लेती हूँ. मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन होता है कभी कभी, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज्यादा ही चीजों में घुस जाते हो और उनसे निकल नहीं पाते हो. लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो तो प्रॉब्लम्स हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है, हमारे आसपास के लोगों द्वारा क्रिएटेड होती है, जिससे हम इतना ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं. और आपने तो गॉड ने जो आपको एक चैलेंज दिया, आपने उसको ओवरकम किया. दैट वाज रियली रियली बहुत ही बड़ी चीज है, और सच में यही सच में इंस्पिरेशन है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मैम को यहाँ पे लाया, और ये सच में हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक बूस्ट डोज होगा हमारे. डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि मैं एक एग्जाम क्लियर करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन 100% आई प्रॉमिस यू कि मैं अपना 100% just because of all things I will give it to you. And then I wish you that 100% you will clear and selected as an assistant professor. Thank you so much ma'am, thank you so much. हाँ जी अरुणा जी, आपकी बात से रिलेट करके कि जो आपने बोला कि सिचुएशन रिलेटेड ही होती है, जैसे एग्जैक्टली बात है. और इसी बात को कनेक्ट करके एक बात बोलूंगी सर कि इंस्पिरेशन देखिए मिलती है हमें बहुत जगहों से, लेकिन सबसे ज्यादा वांटेड होती है सेल्फ इंस्पिरेशन. जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगी तब तक इंस्पिरेशन भी वर्क नहीं कर पाएगी. जैसे ही आप वीडियो से दूर जाएंगे उसी सिचुएशन में जाएंगे, आप सेम कंडीशन में आ जाएंगे. अगर आप सेल्फ इंस्पायर होगे कि मुझे मेरे लिए ये करना है, दूसरे मेरे लिए नहीं करते हैं तब तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, लेकिन जब मैं खुद के लिए नहीं कर पाती तब मैं क्यों हर्ट नहीं होती हूँ. ये चीज सोचना है. और जब सेल्फ इंस्पायर हो जाओगे तभी काम होगा. तो आज से अपने अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन को इंस्टॉल करें, कभी उसको वापस वहां से कैंसिलेशन में न लाएं, और तभी सक्सेस मिलेगी. क्योंकि विल पावर की कमी होना सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है इस लाइफ की, और कोई भी डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती. की डिसेबिलिटी सबसे ग्रेटेस्ट होती है. इसलिए सेल्फ इंस्पिरेशन अपने में रखें इंस्टॉल, और आपको जरूर जरूर सक्सेस मिलेगी. सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल को अगर हम चार्ज में लगा दें और खुश हो जाएं कि मोबाइल चार्ज में लगा रखा है, तो वो चार्ज नहीं होगा जब तक उसका स्विच मेन बोर्ड से ऑन नहीं होगा. definitely really right. तो इसलिए थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, और मैं बिल्कुल यही प्यार आपको वापस रिटर्न में देना चाहूंगी. जब आप लोगों का सिलेक्शन, मैं दिल से आज प्रे करती हूँ गॉड से कि आप सबको बहुत अच्छी सक्सेस मिले, है ना. चाहे 1 महीना पहले चाहे 1 महीना बाद मिले, लेकिन सक्सेस जरूर मिले. Thank you so much Sunita. And one last request to you Sunita, we all want to congratulate and say good wishes to Divya. If you can ask her to come and have a talk with us. Yes sir. Because Divya ने काफी मेहनत की है, starting from mock interview 1 से लेके आज तक. He has done lot of support. Yes sir. Yes sir. Surely sir. Hello Divya. Namaste. Congratulations Divya. फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations. and जिस लगन से आपने अपने गुरु की मदद की है, हेल्प किया है, it is an inspiration to all of us
And not only all of us, all the students of this country, they must get inspired She is by also the devotion. and she is also preparing for NET of September 2022. Wow, great, great. Divya, last 1 minute. We want to listen you. Yes, sir. In short, in just line, I am describing Sunita Mohta. She is Lord to me. Why are you being She emotional? is, in short, I saved her number in my mobile as Khuda. Oh, She is wow. to me, everything, like everything she is to me. Great, great devotion. Wonderful. Thank Sir, you so much, Divya, Most for of being. हम पिछले 6-7 साल से साथ में ही हैं. मैं थोड़ा बहुत तो लिखती, पहला जब मैंने लिखना शुरू किया था तो माय फर्स्ट पोएम वाज फॉर हर एज माय इंस्पिरेशन, मेरा फरिश्ता. क्या बात, क्या बात. So wonderful. Sir, she is very pious, so she is saying, but I am not, sir, like these, sir, these greatest words, sir. It's our affection and emotion, sir. But, sir, I always thank to God that, sir, people are with me with their heart and emotions, and such as she. People are writing a relationship. Yeah, both of you are exemplary example of a guru and a shishya. That's really, आज के जमाने में भी ऐसे गुरु और शिष्य होते हैं, आज हमें देखने को साक्षात मिला है. बात है सर, मैम जैसे गुरु होना, आई एम द लकीएस्ट वन. बाप रे. Thank you so much, Divya. Thank you so much for your wonderful support, wonderful inspiration, and all of us are giving you a lot of blessings. Thank you, that sir. you touch every height of your success like your guru. Thank you. Thank you so much, Sunita ji, for this wonderful interaction, and I wish you will be connecting to us very frequently and keep inspiring us the way you inspire today. Sir, I am not going to inspire you, sir, and not inspire to anyone. I am only in desire to be with all my ones for sharing their views and of mine. Because, sir, no one can inspire to anyone. Only I said this, that, sir, self-inspiration is the most, wanted thing. And, sir, God bless me with that moment. I can inspire to someone, sir. Thank you so much, Sunita, and I'm very sure कि हम कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे and हम दोनों एक साथ we will celebrate our success. And Yes. I also wish कि दिव्या भी हमारे साथ रहेगी. Yes, sir. So wish to, sir. And sir, I think कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ हो, तब कितना अच्छा लगेगा सर. ये यादें जब ताजा होंगी, जैसे आज Wonderful. हुई थी पुरानी ताजे नॉस्टैल्जिया, ख्याल ही नहीं हुई, वैसे हम सब एक बार फिर से हों, हम यही चाहते हैं दिल से. Thank you so much, Sunita, for being with us, for interacting with us so nicely. Thank you Yes, so much. sir, And for this precious time, precious moments, sir. thank you Thank so much. all of you, dear ones. You really made us to feel the catharsis of Aristotle. Thank you, sir. And you lastly, sir, teaching me catharsis theory, sir. I thought my preparation is over, so my preparations is over. But, sir, you started preparation again by revising my theory of So, Okay, thank you, Sunita. Thank after you. enough, and be confident and be self-inspiration for herself that I am going to do that this time. Okay, all the best again and for all of you. Thank you. Excuse All me, of sir. you, please clap for Sunita one last time. Yeah, instant. Excuse me, sir. Yes, please. सर हम लोगों ने कभी फरिश्ते के नाम सुने हैं पर फरिश्ता देखा नहीं, बट ओ बाप रे. ग्रेटली. यस सर, बिल्कुल रियली सर. लेकिन आज आपको भी बहुत बहुत थैंकफुल कहना चाहती हूँ कि आज आपने मैम को प्रेजेंट करके हम लोग को दिखाया कि फरिश्ते का रूप ऐसा होता है जो हम लोगों ने देखा नहीं. थैंक यू आरती सर, रियली हार्ट टचिंग सर. और शायद आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम सब ही सक्सेस जरूर पाएंगे सर. रहा नहीं थैंक यू सो मच सर.
शायद को हटाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हैपनिंग है, होगा ऐसा, डन। हार्टली थैंक यू मैम। तो एज ए गुरु मैम बहुत बड़ी चीज होती है, और आज आपने ये साबित कर दिया कि गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, और गुरु बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। सर ने भी आपके साथ किया, और मैम आप भी आज वही कर रहे हो मैम। ये बहुत इंस्पिरेशन है मैम, बहुत इंस्पिरेशन है। और साल मेहनत करो, फिर जिंदगी में आराम करके तो भी करके ये आपके पास हो सकती है ना। यस मैम। ओके, ओके Thank you so much. Thank you so much, Sunita. Thank you, Divya, for being with us. yes sir, thank you, my side. thank you to everyone. Thank you so much, ma'am. सर कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो जो पद चिन्ह बने हैं ऐसे आपने जो पद चिन्ह बनाए हैं, हम जो भी इस ग्रुप में 90% है, और हम सब उनको फॉलो करना चाहेंगे। और 2 लाइन आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी। अपने मन की जिसके हाथ में लगाम है, आदमी उसी का नाम है। वो आपने करके दिखाया है। रह के अंधेरों में जो औरों को प्रकाश दे, आपने हम 90% को वो प्रकाश आज दिया है। मैं जिंदगी में पहली बार बहुत इमोशनल हो गई हूँ। Thank you for your और आप 90% हम सब 90% जो इस ग्रुप में है, आपसे सब जुड़ना चाहते हैं हमेशा। आप सर के साथ हमेशा आते हैं, और आप जिसने हम सबको आज रुला दिया है, वाकई में रुलाया है। आज मैं किसी का इंटरव्यू देख के पहली बार इतना रोती, मेरे साथ अभी नहीं हुआ है। थैंक यू मैम। thank you for your beautiful word. What is I now? Thank you so much, Seema ji, for sharing your wonderful words. And thank you, Sunita, for making us try with happiness, joy, inspiration, and motivation. And thank you, sir, for revising catharsis theory, sir. Ma'am, this is not blindness, this is light. Yes, This sir. is light. Yes. Thank Thank you, you. Okay, Sunita, thank you. You can sign off now. Yes, sir. Okay, bye bye to everyone. All the best. Bye, Sunita. Bye, Thank Divya. you. ठीक है, बात को एंड करना Thank you चाहूंगी। so much, madam. Yes, sure, sure. Bye bye, ma'am. Sure, Thank you, sure. ma'am. Yes, एक लाइन सुन के जाए। Don't fear because success is near. It's okay. Wonderful. Great, ma'am. Thank you. Great, ma'am. Thank you, ma'am.